Good morning, everyone. I hope I'm audible to all of you. Okay. So today is the 11th class of integration. Uh, in the last class, we have completed exercise 3.2C, right? Okay. So now we will be starting with the next exercise. And for that, we will have to learn few concepts and then we will start. So this is going to be very important lecture. First time we are going to study about integration of UV rule. Till now we did integration of u plus v, u minus v, constant into a function. But now this time we will be doing integration of a function into a function, product of two functions. Okay. This integration of UV, we have a special name for it, which is called as integration by parts. Integration by parts. So all of you just write down this heading, integration by parts. Okay. So actually there is a formula for UV rule. And that formula is like a theorem only. So we will write down the formula also and we will see the proof of that formula also. Okay. How it has come. So all of you write down statement of the theorem. Statement of the theorem. If U and V are two differentiable functions of x, then integration of u into v with respect to x will be equal to u integration of v minus integration of inside the bracket integration of v into derivative of u dx. This is the formula of UV. Let me explain you what exactly it is and how to remember it. See, first of all, u into v है. So u common लिया, first function को common, integration v minus integration of something. So integration of something बीच में है और बाद में dx है. So this dx is for the integration which is outside the bracket, right? अब इनसाइड क्या करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन याद रहेगा इजीली. इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन, राइट? अब इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन याद रहेगा तो फिर इंटीग्रेशन किसका करने का, तो जो पहले किया जिसका इंटीग्रेशन उसी का करने का. तो इधर किसका किया v का, उसी का इंटीग्रेशन यहाँ पर, और फिर इनटू डेरिवेटिव करने का किसका, u का. यस, इजी टू रिमेम्बर नाउ. u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर
रिपीट इंटीग्रेशन v एंड डेरिवेटिव ऑफ u। तो इंटीग्रेशन v निकालेंगे, डेरिवेटिव u निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका एक फिर से इंटीग्रेशन निकालेंगे with respect to x, right? And then we will solve to get the final answer. Okay, so this is the theorem. You all have to by heart this, learn it, write down 10 times. Okay, understood the logic to by heart this formula? Easy. In u integration v, integration of v into derivative of u. Now the theorem can be asked for 4 marks if it is asked. So the proof of the theorem is very important. So just focus here now. Proof. Okay. The proof will start with, see, you can see on the right hand side, integration v is twice, right? So we will start the proof like this, that let that integration of v with respect to x assumed as w. Okay, that will be also a function, so I assume it is a w. Now tell me, suppose I call it as 1. Now if integration of v is w, can I say then derivative of w is v? Can I say like this? Come on, say yes or no. Because integration is anti-derivative, right? तो अगर v का इंटीग्रेशन w है, तो मैं बोल सकता हूं कि w का डेरिवेटिव with respect to x v होगा. I hope the first 2 statements of the proof are very clear. So you have to just remember that you have to start the proof with this particular part, integration of v, and then you will write consider find out derivative of, यहां पर v को कंसीडर किया, इंटीग्रेशन v, तो बचा क्या अब यहां पर u, तो u को ले लो और जो नया वेरिएबल बना है w को ले लो, u इंटू w का डेरिवेटिव फाइंड करो, यस, बाय यूवी रूल. तो ये तो नॉर्मल हो गया, यूवी रूल ऑफ डेरिवेटिव तो हमको मालूम है ना, u कॉमन डेरिवेटिव ऑफ v, v कॉमन डेरिवेटिव ऑफ u. तो u w में क्या होगा, u कॉमन डेरिवेटिव ऑफ w प्लस w कॉमन डेरिवेटिव ऑफ u. Yes, everyone understood this? Okay, but just now from 2 dw by dx is v. So can I replace this dw by dx by v? So it is going to be u into v plus w du by dx. I can say it is from 2, correct? So this is your derivative of u into w. Okay, now again I will use the definition of integration what I have used here, कि इंटीग्रेशन ऑफ v w है तो डेरिवेटिव ऑफ w v होगा, राइट? दैट इज इंटीग्रेशन का डेफिनेशन. वैसे ही यहां पर अगर देखोगे तो अगर u w का डेरिवेटिव ये वाला पूरा फंक्शन है, तो कहना है कि ये पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन u w होगा. हेलो, सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, आई रिपीट, क्या मैंने बोला, यू डब्ल्यू का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन यू डब्ल्यू होगा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो आई विल राइट देयरफॉर यू डब्ल्यू विल बी इक्वल टू
देयरफॉर यू डब्ल्यू इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन मतलब वो तो दो टर्म है, तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, u इंटू वी प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टेप? मैंने डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया। ओके, नाउ यहां तो प्लस है, तो आई कैन सेपरेट द इंटीग्रेशन। सो लुक एट हियर नाउ, so I can write this as integration of uv dx plus, सॉरी हाँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ uv dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w du by dx with respect to x, like this is u into w, जस्ट इंटीग्रेशन को सेपरेट किया। ठीक है, अच्छा अभी आप देख सकते हो कि अरे w को फ्रॉम 1 मैं इंटीग्रेशन v लिख सकता हूं, यहां भी w है और यहां भी w है, करेक्ट? लिख सकते हैं ना बच्चों? तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, सो देयरफॉर u इंटू w है इंटीग्रेशन ऑफ v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ w मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू du by dx with respect to x. I will call this as from 1, correct? And now I think you have got the theorem. uv को इधर ही रहने दो क्योंकि हमको uv का इंटीग्रेशन निकालना था, इसको इधर भेजेंगे तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, राइट? सो योर फाइनल आंसर विल बी दिस केप्ट इट हियर ओनली। सो uv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये पहले से है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v into derivative of u with respect to x, and this is what we wanted to prove, so hence the proof. Yes everybody, so it's very simple proof, but the thing is that आपको क्लिक होना चाहिए, आपको स्टार्ट में क्या एजम्पशन लेना है, ठीक है, उसके बाद कैसे आपको स्टार्ट करके सॉल्व करना है, हाँ, वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्ट विथ v का इंटीग्रेशन w एज्यूम किया तो w का डेरिवेटिव v हो जाएगा, फिर u w में डेरिवेटिव लगा दो, फिर डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो, w को रिप्लेस करो एंड द सॉल्यूशन इज डन। सो ऑल ऑफ यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द प्रूफ राइट नाउ, कंप्लीट दिस। Any step if you have not understood, please do ask.
Okay, I hope everybody have understood this now. Okay, fine. So this is the rule that is called as UV rule. Okay, now see in derivative, okay, when we did UV rule, so that was u derivative of v plus v derivative of u, right? That time we had discussed that the order is not important, right? Whether you take u first or v first, you take common, then we take common, it doesn't matter because anyways it is plus in between. But here, the selection of uv is very important. Sometimes if you do a wrong selection of u and v, you may stuck, है ना, आपसे आगे नहीं सॉल्व होगा. क्यों? बिकॉज आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस फॉर्मूले में कि u और v में v ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन होता है और u का डेरिवेटिव होता है. तो अगर u v के सिलेक्शन में हमने ऐसा कुछ किया कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव होने के बाद भी उसका अगर इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, राइट, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं why the order is important in integration by parts in UV rule of integration. Suppose if I ask you to find out integration of x into e raised to x. Okay. So just now we have done the formula. Considering this as u, this is as v, u common, integration of v minus integration of v. So I don't have to think like this, into derivative of x, that is derivative of u. See in textbook इस इंटीग्रेशन के बाद पहले डेरिवेटिव लिखा है, बाद में इंटीग्रेशन लिखा है फॉर्मूले में भी, बट एक ही बात है ना. अब a इंटू बी और b इंटू ए, बट मुझे ये इजी लगता है क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन याद करने के लिए इजी होता है. ओके, चलो अब ये क्या होगा, x इंटू ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन हो गया. ये इंटीग्रेशन बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, अंदर वाला इंटीग्रेशन तो हो गया सॉल्व, इंटीग्रेशन x और x का डेरिवेटिव 1. अब ये क्या होगा, x e raised to x minus e raised to x into 1 is e raised to x, and e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, लास्ट में प्लस c लिख दो. ये हो गया आपका आंसर. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? Okay, now do one thing student, if you have followed this, try integration of same function, but this time I am writing e raised to x first and x later. Apply UV rule and just think कैसे हो रहा है, सॉल्व करो इस वाले को. Yes, are you getting this? E raised to x common, integration of x minus integration of x into derivative of e raised to x. Now e raised to x into x का integration is x square by 2 minus integration of
x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x dx। ये तो सॉल्व हो गया। I can write it as 1 by 2 e raised to x, x raised to 2. Here also 1 by 2 common. I will be left with e raised to x into x square. Now don't you think हमने integration e raised to x into x start किया था, and now we have got e raised to x into x square. Can we do direct integration here? No. Here I will have to apply UV rule again. Yes or no? Yes or no बच्चों? Because it's product ना. तो e raised to x into x में ये वाला टर्म आया, तो फिर इसके इंटीग्रेशन में भी तो ऐसा ही कुछ टर्म आएगा। क्या होगा सोचो, ये वाला पार्ट, इस इंटीग्रेशन का ये वाला पार्ट सोचो क्या होगा। x के जगह x स्क्वायर होगा, तो वो x रेज टू 3/3 हो जाएगा, और ये तो सेम ही रहेगा। तो अगेन आई विल गेट e रेज टू x into x रेज टू 3/3. So don't you think it will be keep on coming? It's a never ending. हाँ, sometime it comes like this कि हमको वापस से u into v अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार किया तो दोबारा नहीं कर सकते, बट यहाँ पर ऐसा ट्रेंड लग रहा है कि इफ आई कीप ऑन डूइंग, then I'll be keep on getting e raised to x, x cube, then e raised to x, x raised to 4, and so on. It won't get solved, right? बट वही मैंने जब ऊपर लिया था तो इट वॉज इजिली सॉल्व। इसका मतलब कुछ तो ऑर्डर का लेना देना होगा बच्चों, हाँ या ना? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। So I'm not saying it is difficult, it is impossible, but I can say it's difficult to solve this, right? हाँ, अब ये सॉल्व इजी कब होगा? अगर मैंने x स्क्वायर को पहले लिया, e रेज़ टू x को बाद में लिया, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, right? So as we have now, we are convinced that order is important. Then sir, how to decide order? How to decide which one is u and which one is v? So to decide order of the function, we have a tool, okay? Order of uv, and that rule is called as Liat rule. Liat rule. Okay. Now what is this Liat, बच्चों? So L-I-A-T-E. Okay. Now Liat means L, this is I, I'll better write like this only. L stands for L-I-A-T-E. Yeah, L stands for logarithmic function. I stands for inverse function. A stands for algebraic function. T stands for trigonometric function, and E stands for exponential function. Yes. So what do you mean by this Liat rule? If you have two functions, it may be logarithmic, it may be inverse, it may be algebraic. Logarithmic तो समझ रहा है, log का टर्म। इनवर्स मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। अलजेब्रा मतलब x के अंदर, x स्क्वायर के अंदर, x क्यूब के अंदर होगा अलजेब्रा। ट्रिगो मतलब साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कोसेक। और एक्सपोनेंशियल मतलब e रेज टू x, a रेज टू x। अगर इन सब फंक्शन का प्रोडक्ट है u इंटू v में, तो आपको u और v इस लेटर के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली लेने का।
सपोज आपके पास आया एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन, तो आप u किसको लोगे? तो l कम्स फर्स्ट, a कम्स लेटर, तो u विल बी लॉगरिथमिक फंक्शन, a विल बी अलजेब्रिक फंक्शन। बट एक अलजेब्रिक फंक्शन आया और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, तो अलजेब्रिक कम्स फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल कम्स लेट, सो a विल बी अलजेब्रिक दैट u एंड e विल बी v। हमारे केस में देखो x इंटू ई रेस टू एक्स, तो x अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो a है और ये i e है, तो a कम्स फर्स्ट ना इन द लियाट रूल। तो इसके लिए अलजेब्रिक फर्स्ट लेंगे, एक्सपोनेंशियल बाद में लेंगे, तो देखो इजीली सॉल्व हो गया। बट अगर मैंने एक्सपोनेंशियल पहले ले लिया, अलजेब्रिक बाद में लिया, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस रूल? और इसका यूज कैसे करना है समझ में आ रहा है? प्लीज राइट इट डाउन। And let me know if it is done. Okay, I think it's very easy. You all would have done it. Okay, now after this, there are few results. The proof is given in the textbook. Okay, the proof is not given, it is asked to prove them, but these formulas are UV rule only. The proof is from UV rule only. You can try it at home, but these are the important results. You will be using them in your CET or in JEE. Okay, so first rule, integration of e raised to ax into sine of bx plus c, and the second rule is for integration of ax into sine of bx plus c। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आया e रेस टू x है, 2x है, 3x है, 4x, 5x, कुछ भी समझ, ax मतलब a कैन बी एनीथिंग, इनटू है साइन ऑफ लाइक दिस लीनियर इक्वेशन, या तो e रेस टू ax है, जी मैंने सेकंड भी साइन ही लिख दिया, cos ऑफ समथिंग है, तो डेफिनेटली आप यूवी करके सॉल्व करोगे, इट विल बी अ लेंथी वन। तो हम डायरेक्टली ना इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a इंटू साइन ऑफ bx प्लस c प्लस b इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c। अभी आपको लगता होगा लेंदी, बट जब क्वेश्चन आता है ना तो उसमें ये बहुत इजी हो जाता है यूज करना। और कॉस में क्या चेंजेस होगा? सेम होगा, बस मिडिल टर्म, मिडिल साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी a इंटू साइन bx प्लस c माइनस b इंटू कॉस bx प्लस c। This is important for CET and JEE, not for boards. ठीक है, बोर्ड्स में आया तो फिर एज अ थियोरम, एज अ नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, बट नहीं पूछना चाहिए। बट एज अ शॉर्टकट फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर इट एज इन फॉर JEE और फॉर CET। Okay, for example,
सपोज आपको इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 2। तो अभी डेफिनेटली यू भी करना पड़ेगा, ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो टी पहले आएगा, ये बाद में जाएगा, उसमें यू भी अप्लाई करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना। बट अगर आपने इसको कंपेयर कर लिया तो आंसर आपको इजी हो जाएगा। ई रेस टू ए एक्स मतलब ई रेस टू 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए 2 है तो 2 स्क्वायर, बी 3 है, बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, सो बी इज 3 तो 3 स्क्वायर, और फिर a इंटू साइन, तो a है 2, 2 इंटू साइन ऑफ एंगल, जो एंगल था वही, प्लस b इज 3 तो 3 इंटू साइन कॉस ऑफ द सेम एंगल। हो गया आंसर, समझा सबको? तो डायरेक्ट सीटीवीटी में ऑप्शन देख के हम आंसर बता सकते ना। इसको सॉल्व कर लोगे, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 एंड ऑल, 4 प्लस 9 13, बट बाकी सब तो वैसा ही वैसे का वैसा ही रहेगा। Is that clear everybody? How to use this formula? Okay. चलो, very good. Now, एक स्पेशल नोट, अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। इफ यू वांट टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, अभी तक हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं देखा, इंटीग्रेशन ऑफ tan inverse, right? Integration of sec inverse, integration of log x. So to find integration of all this, we can find the integration of all these functions using integration by parts. आप बोलोगे सर हाउ कम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ तो एक ही फंक्शन है साइन इनवर्स, एक ही फंक्शन है टैन इनवर्स, हाँ है ना बच्चों? तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे कर सकते हैं? सो इन ऑल दीज क्वेश्चंस you have to take another part of in each function, and that another part you will take it as 1. Means you will solve sine inverse x using integration by parts by taking one of the part as 1. 1 being x raised to 0, so it's algebraic, we'll treat it as algebraic, right? तो इनवर्स है और अल्जेब्रिक है, तो कौन सा पहला आएगा? LIA, आई पहले आता है। तो साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1, इसमें यू भी लगाएंगे। टैन इनवर्स एक्स में हम कैसे करेंगे? तो टैन इनवर्स एक्स इंटू 1 में यू भी लगाएंगे, इसको सेक इनवर्स एक्स एंड 1 में यू भी लगाएंगे, और लॉग के लिए भी लॉग एक्स इंटू 1 में यू भी लगाएंगे। सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? सो 1 एज अ वी हम एज्यूम करेंगे और उसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज नोट इट डाउन। ओके, उसके बाद देर आर फ्यू मोर न्यू स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जिसका हमको फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, ठीक है, एंड दे आर नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a square minus x square dx, then integration of root of a square plus x square dx, and
इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। सो देखो बच्चों, हमने 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया है। फिर हमने 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला देखा है, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का देखा है, और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी देखा है। यहां पर कोई 1 अपॉन नहीं है, कैन यू सी दैट? ये डायरेक्ट है, राइट? तो उसका ये फॉर्मूला हम लोग करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसके अलग से फॉर्मूले होंगे। आप बोलोगे सर क्यों इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? आप सोचो जरा, कैन आई डायरेक्टली इंटीग्रेटेड? कैसे करोगे? ये रूट है, रूट मतलब रेस टू 1/2। अब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला तो तभी एप्लीकेबल होता है ना जब अंदर लीनियर इक्वेशन होता है। अंदर लीनियर तो है नहीं, अंदर तो क्वाड्रेटिक है। ओके, तो इन सब का एक फॉर्मूला है, वो सब हमको याद रखना है, और इसका प्रूफ होमवर्क में करना है आपको, इन तीनों का। टेक्स्ट बुक में आई थिंक 1 या 2 प्रूफ दिया रहेगा, बाकी के प्रूफ आपको खुद से करने। प्रूफ भी सिंपल है, ये फंक्शन लेना है, इसके साथ 1 लेना है, इंटू 1 लेना है। जैसे हमने इसका किया, इंटू 1 लेके यूवी रूल अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान से देखो। हाँ, 3 फंक्शन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसका उल्टा मतलब माइनस की जगह प्लस, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप बोलोगे सर उल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेम ही होगा ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, सेम ही होगा। ठीक है, ओके। अभी देखो दोनों का फॉर्मूला याद कैसे करना है। x/2 क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबका पहला टर्म यही होगा, देयर आर 2 टर्म्स इन द आंसर। सबका पहला टर्म क्या है? x/2 क्वेश्चन, देन x/2 क्वेश्चन। इतना पहला फर्स्ट पार्ट समझ में आया सबको? ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट लॉजिक बता रहा हूं। अगर आपका क्वेश्चन में ए पहला है, ए पहला है, ए फॉर एडिशन, यू विल राइट प्लस। ए पहला है, ए फॉर एडिशन, यू विल राइट प्लस। एक्स है, ए बाद में, ए नेगेटिव है तो माइनस। कैन यू सी हियर? इजी है याद रखने के लिए। ए स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस है, ए स्क्वायर का साइन प्लस है, ए स्क्वायर का साइन माइनस है, तो प्लस प्लस माइनस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तीनों में सेम, ए स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2। नीचे के दो को देखना, ये एक स्पेशल है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो पहले भी स्पेशल था, याद है? साइन इनवर्स आता था, याद आ रहा है क्या आपको? यस, हाँ। तो मुझे बताओगे आप कि अगर ये वाला टर्म 1 अपॉन में होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या था, याद है आपको? 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, याद आ रहा है आपको? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो बस इसका रेसिप्रोकल का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, वो लिख दो यहाँ पर। अच्छा, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर रहता तो क्या था उसका इंटीग्रेशन? याद करो,
लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, यही था ना बच्चों। और इसका 1 था तो क्या था, लॉग ऑफ एक्स प्लस, हाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपका फॉर्मूला बन गया ये तीनों का। हाँ मैंने आपको एकदम इजी लॉजिक के साथ बता दिया आपको याद कैसे करना है, राइट। एक लाइन में अगर मैं बोलूं शॉर्टकट, तो इन सब का फॉर्मूला एक ही है, x/2 क्वेश्चन, ठीक है, प्लस या माइनस a²/2 डेरिवेटिव ऑफ 1 क्वेश्चन, नॉट डेरिवेटिव सॉरी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्वेश्चन। समझ में आया सबको? अगर याद करने में तकलीफ होगा तो ऐसा याद कर सकते हो, प्लस सी। तो देख सकते हो x/2 क्वेश्चन लिखा, फिर प्लस और माइनस का लॉजिक मैंने बता दिया, a²/2, फिर 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन x/a, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इट्स डन। प्लीज नोट ऑल द 3 फॉर्मूले, जल्दी से हो जाए तो डन लिखो मैसेज में। ओके, आई होप इट्स डन नाउ। तो ये भी एक नया फॉर्मूला है जो आप यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड, there are 2 more special type of question. So next you will write integral of the type, suppose you want to find out integration of px plus q into root of ax square plus bx plus c. There's a question, where is the proof? You find out in the textbook, you will get it. Huh? I'm not sure all 3 proofs are there or not, लेकिन एक हाथ 2 का तो रहना चाहिए, आप देख लेना टेक्स्ट बुक में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एक्सरसाइज के पहले होगा। चलो, इंटीग्रल ऑफ द टाइप 10। अब ये क्या टाइप है? सो दिस टाइप सेज दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन वेयर लीनियर फंक्शन इज आउट, हाँ, और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो उसका एक स्पेशल मेथड है, उस मेथड का ही यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज दैट मेथड? सो यू हैव टू एक्सप्रेस
your linear term as a into derivative of quadratic plus b. That is, you will write px plus q is equal to a into deriवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. फिर हम करते थे ना, डेरिवेटिव निकालते थे, फिर उसको नंबर 1 देते थे और उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते थे. ठीक है. फिर उसके बाद सॉल्व करोगे ना, px प्लस क्यू को चेंज करके ऐसा लिखोगे और सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा वो. तो एज अ रिजल्ट आप लिखो, बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं यूज करके बताऊंगा. ठीक है. वैसा ही और एक टाइप है, इंटीग्रल of the type integration of e raised to x fx plus f dash x. मतलब यहाँ देखो, ये तो इजी है. अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है और फंक्शन ऐसा दिया है कि e raised to x है और उसके साथ ब्रैकेट में दो टर्म है और वो एक दूसरे के डेरिवेटिव है, मतलब एक दूसरे के नहीं, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन उसका डेरिवेटिव वहां पर प्रेजेंट है. एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है. दिख रहा है? अगर ऐसा है तो इस इंटीग्रेशन का हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सच टर्म इज e raised to x fx. दैट्स ऑल. e raised to fx plus c. ये फॉर्मूला हो गया आपका, that this is equal to e raised to x fx plus c. And sometimes the proof is also asked for this formula. तो इसका प्रूफ देख लो आप लोग जरा, उसके बाद हम लोग सम पे जाएंगे. दिस इज द लास्ट कंसेप्ट before we start the exercise. Okay. Proof is very simple बच्चों. Integration of this is this we have to prove. So what I'll do, इस फंक्शन को लूंगा और इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा. ठीक है. So the proof will start with like let e raised to x into fx, इसको t एज्यूम कर लिया. ठीक है. And then differentiating with respect to x, uv rule of derivative, e raised to x कॉमन, fx का डेरिवेटिव f dash x प्लस fx कॉमन, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, t का डेरिवेटिव dt by dx. Have you all understood the first two steps? Yes or no? Next step में I am taking e raised to x कॉमन, तो बचा f dash x प्लस fx is dt by dx. अब ये स्टेटमेंट क्या बताता है? ये बताता है कि t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये फंक्शन है. अगर t का डेरिवेटिव ये फंक्शन है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन t होगा. डू यू ऑल एग्री? So can I write integration of e raised to x f dash x plus fx will be simply t, isn't it? अरे बट t क्या एज्यूम किया था? e raised to x fx. पुट कर दो उधर तो हो गया प्रूफ आपका. e raised to x, इसको मैं fx को पहले f dash x को बाद में भी लिख सकता हूँ. a प्लस बी सेम एज b प्लस ए, और t की जगह मैंने t का वैल्यू लिख दिया. तो यही तो फॉर्मूला था, प्लस c बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन. Yes, have you all understood the proof is easy? चलो, please make a note of this fast.
Yes, done everybody? Good. So today we have done a lot of concepts. Okay, so all of you just quickly recap what we have done from the start, especially UV. Revise everything what I taught you all. And then I will start with solving the problems. Giving you 2-3 minutes to recap everything. Yes, done everybody? Okay. So let us start. Okay, students, let us start the new exercise, that is exercise 3.3. There are a lot of questions in exercise 3.3.
in 3 sections. One में 21, then 12, and then 9. So 12 plus 9 is 21, 21, 42 questions. Okay. Chalo, start with the first question now. First, integration of x square log x. Now tell me, x square is a algebraic function. Log x is a logarithmic function. So which one is u? The order is same or we need to reverse them? Yes. So you will realize that sir, log x should come first. So I will write this as log x into x square, and then I will apply integration by parts. Now see the first step of integration by parts. U common, so log x common, integration of v. So integration of v with respect to x, minus integration of v, which we have already done in the first step, into derivative of log x. It's very easy to apply the formula, बच्चों. And last में with respect to x for the outer integration. Now log x as it is, x square का integration is 2x, minus this integration as it is. Sorry, x square का integration 2x नहीं होता है, क्या होता है? x raised to 3/3, correct? Yes. So x square का integration x raised to 3/3 into derivative of log x. Derivative of log x is 1/x. हाँ, तो यहाँ ध्यान देना, कभी डेरिवेटिव की जगह इंटीग्रेशन की जगह डेरिवेटिव कर दिया तो गड़बड़ ना. हाँ, अब ये टर्म तो सॉल्व ही है, जैसे इसको अरेंज कर दो 1/3 x³ log x, क्योंकि मिक्स है ना इसके अंदर, तो हो सकता है मिस्टेक. यहाँ पर क्या आएगा, तो ये अपॉन 3 तो कॉमन आ गया बाहर, एक x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर बच गया, राइट. अभी इस x स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आता है अपने को, so it will be 1/3 x³ log x minus 1/3 x raised to 3/3 plus c. Once we done with integration, फिर लास्ट में c लगा देने का. So I think this is the answer. 3 3s are 9 हो सकता है, या तो x³/3 कॉमन ले सकते हैं हम सब में से, तो यहाँ पर log x बचेगा और यहाँ पर 1/3 बचेगा प्लस c. Yes, have you all understood this? Please let me know. सबको समझ में आया बच्चों कैसे किया हमने? Complete this problem fast.
Done, students? Okay. So like that, the other questions are also there. So you all can start solving one by one. कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस आपको लियाट रूल को दिमाग में रख के डिसाइड करना है पहले कौन पहले फंक्शन आएगा. ठीक है, यहाँ पर बताओ ये ए है और ये टी है, algebraic and trigonometry. So I think the order is correct. The order is correct. So I will directly go for UV rule. So start applying it. X square common. Integration sine 3x minus integration of sine 3x. जहां भी इंटीग्रेशन आएगा वहां dx आएगा into derivative of x square. So this will become x square into sin 3x का इंटीग्रेशन sin x का होता है minus cos x, so it will be minus cos 3x divided by 3 minus इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो एज इट इज यहीं से लिख देना है जो हमने लिखा है, माइनस cos 3x अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x dx. अब ये टर्म तो सॉल्व हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 लिख दिया इंटू cos 3x लिख दिया. अब ये तो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन तो 2/3 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो सकता है, तो प्लस 2/3 हो गया और अंदर बचेगा एक x बचेगा और एक cos 3x बचेगा. Now बच्चों, can I directly integrate this? No, because it is again u into v, right? X into cos x. No problem. You will again apply u into v rule here. हाँ, तो बाकी सारे टर्म एज इट इज रखेंगे, उसके अंदर यूवी रूल अप्लाई करेंगे. हाँ, ध्यान से देखो, 2/3 सम बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आई विल यूज. अभी इसमें यूवी अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, ऑर्डर देख लो, ए पहला है टी बाद में, करेक्ट है अल्जेब्रिक. एक्स कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x. I will use some other pen, just a minute. X common, integration of cos 3x dx minus integration of ब्रैकेट के अंदर integration of cos 3x dx into derivative of x. देखो अब सॉल्व हो जाएगा. क्यों? पहले एक्स स्क्वायर था, इसके लिए 2x बचा था, तो x मल्टीप्लाई हो रहा था. अभी x है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो u नहीं बचेगा. हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक्स क्यूब आया, फिर वो एक्स स्क्वायर हुआ, फिर एक्स हुआ, तो 2 बार अपने को अंदर यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा. हाँ, ऐसा भी आता है, तो उससे डरने का नहीं. आपने अगर स्टेप्स बराबर लिखा है तो जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, आपका वो रिडक्शन होते रहेगा, सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो अभी, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 cos 3x प्लस 2/3. now x as it is, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 इंटीग्रेशन cos 3x का sin 3x अपॉन 3 इंटू एक्स का 1 हो गया dx. ठीक है, अभी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 cos 3x प्लस 2/3, ये हो जाएगा x/3 sin 3x माइनस,
अभी देखो साइन 3x/3 है तो 1/3 बाहर लिया और फिर साइन 3x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया, -cos 3x/3। आप यू कैन सी हाउ फास्ट आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला। सोचने का टाइम नहीं होगा, अगर आप एक एक फॉर्मूला सोचोगे तो फिर एक प्रॉब्लम आधा घंटा लगेगा सॉल्व करने में। सब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो लास्ट में प्लस सी लिख दो, ठीक है। नाउ व्हाट कैन वी डू, ये 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो -x²/3 cos 3x, ध्यान से मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी 2/9 x sin 3x minus 2/9, sorry, minus and minus becomes plus, so plus 3 3s are 9, 3s are 27, not even 9, 2/27, can see na 3 3 3 into cos 3x plus c। सबको समझ में आ रहा है बच्चों ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है एंड ऑल? थोड़े ये सम लेंदी होंगे, हाँ, सॉल्व करने के लिए, और सारे फॉर्मूले का आपका चेकिंग भी हो जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो इसके लिए इसको मैं मैक्सिमम कितने भी क्वेश्चन करूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना करते हो खुद से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यही आपका बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस, प्लीज कंप्लीट दिस फास्ट, स्टार्ट से लिख लो, नहीं लिखा रहेगा तो। Please let me know if it is done. Let me solve one more problem for the day, and then you all try the rest of the questions. In the next class, I will again start the same exercise. But if you practice and already if you have done, and then if you ask me doubt that these questions only you have doubt, then it will be better. Otherwise, I can solve all the problems, but वो मेरा practice होगा, आपका नहीं. Okay, so third problem, it's integration of x into tan inverse of x. Tell me about the order. Is the order is correct or should I change? Change, because x is algebraic, this is inverse. LIA, liat, I comes first, right? So I will have to bring tan inverse ahead of x. And now I will apply UV rule. So let's see. So tan inverse x common, integration of x dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। देखो ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अगर यहाँ पर हमने tan इनवर्स x को ऐसे ही रखते तो tan इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं है। वो तो मैंने बताया tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन के लिए इंटू 1 करके यूवी अप्लाई करना पड़ता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है हमको, राइट। तो यहाँ पर देखो अभी tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन x² 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। Derivative of tan inverse x, you all should remember 1 upon, yes, 1 plus x square dx। ये वाला टर्म हो जाएगा x² 2 tan inverse x माइनस ये जो अपॉन 2 है that we can take common, तो अपने पास बचेगा x² अपॉन 1 plus x²। 1 plus x² लिखो या x² plus 1 लिखो, सेम है। अभी इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब ये तो सिंपल न्यूमरेटर को थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो आई थिंक ये सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे करेंगे। x² को मैं लिख सकता हूं x² +1 -1। डू यू एग्री? ऐसा सम किया हम लोगों ने नॉर्मल इंटीग्रेशन में, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर उसको सेपरेट करेंगे, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 बच जाएगा और इधर बचेगा 1 अपॉन x² +1। करेक्ट। इस इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाएंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और ये किसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन x² +1। तो ये तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है ना बच्चों, हेलो। तो ये x माइनस ये हो गया tan इनवर्स x। बाकी सब कुछ एज इट इज हम लिखेंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो बस यही आपका आंसर है। मैक्सिमम 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या 1/2 दोनों में से कॉमन ले सकते हो, बट ठीक है, ऐसा भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, so we can just keep it as it is. Again I'll repeat, formulae, without formulae you won't be able to solve this. Yes, please complete this. And don't leave before I tell you, okay? Complete this one fast. At home you will try questions till 12, 1 to 12, 13 onwards थोड़ा different है, that I'll be guiding you. तो first to 12 में आप खुद से ट्राई करना, फिर जो नहीं आएगा we will discuss। नहीं करोगे तो मुझे करना ही पड़ेगा सब, but it is better if you solve first. Let me know if it is done, बच्चों। Okay, so that's all for today. We will continue this in the next lecture.